آج ہم خدا کے کلام کا مطالعہ عنوان گناہوں کی معافی کا بھید اور فساد کے تحت کرتے ہیں۔ اس مضمون سے ہم خدا کی مرضی کو سمجھنے میں کچھ وقت گزارتے ہیں۔ ہماری ایمان کی زندگی میں سب سے اہم چیز خدا اور ہمارے مابین تعلق ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ کتاب مقدس کیوں کہتی ہے کہ ہم گنہگار ہیں؟ اور کیوں ہمیں مستقل طور پر خدا سے یہ کہتے ہوئے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اے خدا، میں گنہگار ہوں، میں گنہگار ہوں؟ ہمیں خدا اور ہم انسانوں کے مابین تعلق کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد ہم کہاں جاتے ہیں۔ لوگ پیدا ہوتے ہیں اور 70 یا 80 برس جیتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی صرف اس زمین پر کی ہے؟ یا ہم نے اپنی زندگی کا آغاز ابدی جہان سے کیا تھا؟ اس زمین پر پردیسیوں کے طور پر رہے اور پھر واپس ابدی جہان میں چلے گئے جہاں ہم پہلے تھے۔ اگر ہم ان معاملات کو نہیں سمجھتے تو ہم زندگی میں غلط اقدار اور غلط اہداف کے حامل ہوں گے۔ اس لیے آج ہم کچھ وقت یہ سمجھنے میں گزارتے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور اس دنیا میں رہنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے، اور کس نے ہمیں جسم میں رہنے کی اجازت دی، اور ہم صرف اس بدن کے ساتھ کہاں رہ سکتے ہیں۔ ہم کہاں سے آئے ہیں اور اس دنیا میں رہنے کے بعد کہاں جائیں گے، اور کس نے ہمیں جسم میں رہنے کی اجازت دی، اور ہم صرف اس بدن کے ساتھ کہاں رہ سکتے ہیں۔ خدا پر ایمان رکھنے اور درست طور پر ایمان کی زندگی گزارنے کی غرض سے ان تمام اہم معاملات کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم پیدائش باب 2 آیت 7 کی طرف جاتے ہیں۔ اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ یہاں کتاب مقدس کہتی ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا۔ مٹی جسم کو ظاہر کرتی ہے۔ زندگی کا دم جو خدا نے اس کے نتنوں میں پھونکا روح کو ظاہر کرتا ہے۔ اس زمین پر رہنے والے تمام انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہیں۔ آئیں وائز باب 12 آیت 7 کی طرف جاتے ہیں۔ اور خاک خاک سے جا ملے جس طرح آگے ملی ہوئی تھی، اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے۔ پیدائش باب 2 میں خدا نے جسم کو بنانے کے لیے استعمال کیا تھا۔ خاک، کتاب مقدس کہتی ہے کہ جسم خاک میں لوٹ جاتا ہے جہاں سے یہ آیا تھا۔ روح جو جسم میں ہے خدا کے پاس واپس چلی جاتی ہے جہاں سے یہ آئی تھی۔ آپ سب، جب آپ لفظ واپس پر توجہ دیں تو آپ خدا کی ایک بہت اہم سچائی کو دریافت کرنے کے قابل ہوں گے۔ فرض کریں کہ میں یہاں اپنے گھر سے آیا ہوں، تاہم اگر اس کے بعد میں کسی اور جگہ جاؤں تو کیا ہوگا؟ کیا میں لفظ واپسی کا استعمال کر سکتا ہوں؟ واپس کا مطلب اصل جگہ پر لوٹنا ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ یہاں کتاب مقدس کہتی ہے کہ ہمارا جسم واپس زمین کی طرف جاتا ہے جہاں سے یہ آیا تھا، اور ہماری روح کہاں؟ خدا کے پاس واپس جاتی ہے۔ خدا کہاں رہتے ہیں؟ آسمان پر۔ تو پھر ہماری روح کہاں واپس جائے گی؟ ہماری روح آسمان پر واپس جائے گی۔ تو پھر اس زمین پر آنے سے پہلے ہماری روح کہاں رہتی تھی؟ آسمان پر۔ ہماری روح آسمان سے آئی ہے اور آسمان پر واپس جاتی ہے۔ وائز 12 باب میں یہ لکھا ہے کہ خاک یعنی ہمارا جسم دوبارہ زمین پر واپس جائے گی، اور ہماری روح جو ہمارے جسم میں ہے خدا کی طرف واپس جائے گی۔ اس لیے جب لوگ مرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ لوٹ گئے ہیں۔ لوٹنے کا مطلب واپس جانا ہے جہاں سے یہ آیا تھا۔ تو پھر کیا ہم اس زمین پر آنے سے پہلے آسمان پر خدا کے ساتھ رہتے تھے؟ کیا ہم فرشتے یعنی روحیں تھے؟ ہم اس کے متعلق امثال باب 8 آیت 22 سے مطالعہ کرتے ہیں۔
ये लिखा है कि खुदावंद ने इंतज़ाम आलम के शुरू में अपनी कदीमी संतों से पहले मुझे पैदा किया। यहाँ मैं से मुराद सुलेमान है जिसने इमसाल की किताब लिखी थी। सुलेमान इसराइल का तीसरा बादशाह था। ताहम सुलेमान ने कहा कि खुदावंद ने उसे दुनिया की तख्लीक से पहले पैदा किया था। आयत 30 से जारी रखते हैं। मैं अज़ल से यानी इब्तिदा ही से मुकर्रर हुई। इससे पहले की ज़मीन थी। मैं उस वक्त पैदा हुई जब गहराव न थे, जब पानी से भरे हुए चश्मे भी न थे। इससे पहले कि खुदा ने इब्तिदा में आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, इससे पहले कि खुदा ने ज़मीन, टीले और पहाड़ बनाए, सुलेमान कहाँ था? उसने कहा कि वो पैदा हुआ था। तो फिर वो रूह के तौर पर पैदा हुआ था या जिस्म के तौर पर? जिस्म का वजूद रखना नामुमकिन है। आसमान और ज़मीन की तख्लीक से पहले सुलेमान पैदा हुआ था। तो फिर वो कहाँ पैदा हुआ था? वो इस ज़मीन के बारे में नहीं बल्कि आसमान के बारे में बात कर रहा है। वो गवाही दे रहा है कि वो आसमान पर पैदा हुआ था। आयत 26 से जारी रखते हैं। जबकि उसने अभी न ज़मीन को बनाया था, न मैदानों को और न ज़मीन की खाक की इब्तिदा थी। ये लिखा है कि खुदा के खाक को बनाने से पहले सुलेमान पैदा हुआ था। सुलेमान इस ज़मीन पर तकरीबन 3000 साल पहले पैदा हुआ था। ताहम ये ज़मीन कितनी पुरानी है? लोग कहते हैं कि ये 4.5 अरब साल पुरानी है। इसका मतलब है कि सुलेमान 4.5 अरब साल पहले पैदा हुआ था। जिस्मानी नुक्ते नज़र से यह नामुमकिन है। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो एक रूहानी मखलूक के तौर पर पैदा हुआ था जो आसमान पर रह सकता है। आए अय्यूब बाब 38 आयत 1 की तरफ जाते हैं। तब खुदावंद ने अय्यूब को बगूले में से यूं जवाब दिया, ये कौन है जो नादानी की बातों से मसलहत पर पर्दा डालता है? मर्द की मानिंद अब अपनी कमर कस ले, क्योंकि मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तू मुझे बता, तू कहाँ था जब मैंने ज़मीन की बुनियाद डाली? यहाँ मैं से मुराद कौन है? ये खुदा हैं। खुदा पूछे रहे हैं कि तू कहाँ था जब मैंने ज़मीन की बुनियाद डाली? अगर तू दानिशमंद है तो बता। खुदा ने अय्यूब से पूछा, तू तख्लीक के शुरू में कहाँ था? अगर तू दानिशमंद है तो बता। अय्यूब 3500 साल पहले इस ज़मीन पर रहता था। ताहम खुदा उसे याद दिला रहे हैं कि वो 4.5 अरब साल पहले भी मौजूद था। आयत 21 से जारी रखते हैं। बेशक तू जानता होगा, क्योंकि तू उस वक्त पैदा हुआ था और तेरे दिनों का शुमार बड़ा है। खुदा ने अय्यूब से पूछा, तू कहाँ था जब मैंने ज़मीन की बुनियाद डाली? अगर तू दानिशमंद है तो बता। लेकिन अय्यूब इस सवाल का जवाब न दे सका। इसलिए खुदा ने उसे ये कहते हुए जवाब दिया कि तू उस वक्त पैदा हुआ था और तेरे दिनों का शुमार बड़ा है। यह हत्ता कि ज़मीन की तख्लीक से पहले था। उस वक्त अय्यूब कहाँ पैदा हुआ था? क्या ये आसमान पर नहीं है? किस सूरत में? एक रूहानी सूरत में। वो फरिश्ता के तौर पर पैदा हुआ था। तो फिर क्या सिर्फ अय्यूब और सुलेमान ही आसमान की बादशाही में पैदा हुए, जबकि बाकी सब इस ज़मीन पर पैदा हुए थे? क्या आप ऐसा सोचते हैं? किताब मुक़द्दस तमाम बनी नू इंसान को अय्यूब और सुलेमान के मामलात बतूर नमूना दिखाती है, ताकि हम समझ सकें कि हम इस ज़मीन पर आने से पहले कहाँ पैदा हुए थे। तो फिर हम यहाँ क्यों हैं?
हम आसमान पर जाने की कितनी ख्वाहिश रखते हैं। वहाँ हमेशा की ज़िंदगी, बरकत, खुशी और शादमानी की फरावानी है। किताब मुक़द्दस कहती है कि खुदा आसमान पर हर रोज़ खुशी तख्लीक करेंगे। आसमान पर हमेशा रहने की बजाय सुलेमान और अय्यूब इस ज़मीन पर क्यों आए थे, जो दर्द और तकलीफ से भरी थी? हर चीज़ की एक वजह होती है। हम इस ज़मीन पर इस जिस्म में बिला वजह नहीं रहते। ये सिर्फ उन पर लागू नहीं होता। हम एक जैसे हैं। हमें इस ज़मीन पर क्यों रहना है? दर्द, तकलीफ, दुख, फिक्र और परेशानियों में जीने की कोई वजह ज़रूर होगी। यीशु इस सवाल के जवाब के साथ इस ज़मीन पर आए थे। आए लूका बाब 19 से देखते हैं। लूका बाब 19 आयत 10। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। यीशु इस ज़मीन पर खोए हुए लोगों को ढूंढने और उन्हें नजात देने आए थे। ये उनकी आमद का मकसद था। यहाँ यीशु ने कहा कि हम खो गए थे। तो फिर खो जाने से पहले हम कहाँ थे? हम आसमान पर थे। ताहम हमने आसमान खो दिया और इस ज़मीन पर भटक रहे हैं। इसीलिए यीशु ने कहा कि हम खो गए थे। उन्होंने कहा कि वो खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आए हैं। तो फिर हम क्यों खो गए थे? आए मत्ती बाब 9 की तरफ जाते हुए जवाब मालूम करते हैं। किताब मुक़द्दस में हर सवाल का जवाब मौजूद है। मत्ती बाब 9 आयत 13। मगर तुम जाकर इसके मानी दरियाफ़त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ। मैं यीशु को जाहिर करता है, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुलाने आया हूँ। जब आप किताब मुक़द्दस को जुफ़त आयात के साथ पढ़ें तो आप बहुत अहम सुराग तलाश कर पाएंगे। हम क्यों खो गए थे? हम खो गए क्योंकि हमने आसमान में गुनाह किया था। हम इस ज़मीन पर फेंक दिए गए क्योंकि हमने गुनाह किया था। इसीलिए यीशु ने अपने आने के मकसद का जिक्र करते हुए कहा, खोए हुए को ढूंढने। एक और आयत में उन्होंने कहा, गुनहगारों को बुलाने। आप सब बुलाना और ढूंढना, क्या ये यकसा नहीं है? जब आपने डिकन किम को ढूंढना हो तो क्या आप उसे डिकन किम कहते हुए नहीं पुकारेंगे? बुलाने और ढूंढने का एक ही मफहूम है। यीशु इस ज़मीन पर गुनहगारों को ढूंढने आए थे। किताब मुक़द्दस हमें सिखाती है कि तमाम इंसान रूहें यानी फरिश्ते थे जिन्होंने आसमान पर गुनाह किया और इस ज़मीन पर फेंक दिए गए। बाज़ लोग कहते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, मैंने कभी कुछ बुरा नहीं किया। ताहम जब भी मैं चर्च जाता हूं तो वो कहते हैं कि हम गुनहगार हैं, इसीलिए मैं चर्च नहीं जाना चाहता। जिस गुनाह का हम कह रहे हैं वो असल गुनाह है जो हमने आसमान पर किया था। खुदा हमें किताब मुक़द्दस से सिखा रहे हैं कि हमें गुनाहों से मुखलसाना तौबा करनी है। हम पहला यूहन्ना बाब 1 आयत 8 की तरफ जाते हैं। अगर हम कहीं कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। अगर कहीं कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं है। अगर हम कहीं कि हमने गुनाह नहीं किया तो इसका मतलब खुदा को झूठा ठहराना है।
इसका मतलब है कि इस ज़मीन पर रहने वाले तमाम लोग आसमान पर गुनाह करने वाली रूहें हैं, यानी आसमान पर गुनाह करने वाले फरिश्ते हैं। यीशु इस ज़मीन पर गुनाह करने वाली रूहों की रहनुमाई तौबा को करने के लिए आए थे। अपने खोए हुओं को ढूंढने की गरज से उन्होंने दुखों की ज़िंदगी गुजारी और हमारे गुनाह के लिए सलीब पर मुए। हमें वाज़े तौर पर जानना चाहिए कि हम यहाँ इस ज़मीन पर क्यों हैं, और इस वजह को भी जानना चाहिए कि क्यों तमाम बनी नूह इंसान को खुदा पर ईमान रखना है। क्या आप सोचते हैं कि आप इस ज़मीन पर सिर्फ खाने, बूढ़े होने, बीमारियां लगवाने और मरने के लिए पैदा हुए हैं? आप सब, ये सच नहीं है। खुदा हमें कुछ ऐसा सिखा रहे हैं जिसका हमें अब तक एहसास नहीं है। हमें अपने तमाम गुनाहों से तौबा करनी चाहिए जो कि खुदा हमसे करवाना चाहते हैं, और अपने आसमानी घर वापस जाना है जो हमने खो दिया था। खुदा इस ज़मीन पर गुनहगारों को बचाने आए थे। हमारे गुनाह वो नहीं हैं जो हमने इस ज़मीन पर किए हैं, बल्कि वो हैं जो हमने आसमान पर किए हैं। तो फिर हमने आसमान पर किस किस्म का गुनाह किया था कि हम इस ज़मीन पर फेंक दिए गए? हम रोमियो बाब 6 आयत 30 की तरफ जाते हैं। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। आप सब, इस दुनिया में भी कई अक़साम के जुराइम होते हैं। मामूली जुराइम ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी, कत्ल वगैरह हैं। बहुत से हैं। ताहम वो गुनाह जो हमने आसमान पर किया था, उससे हमें मौत की सज़ा मिली। किताब मुक़द्दस कहती है कि हमारे गुनाह की मजदूरी मौत है। क्या हम मामूली जुर्म का इर्तिकाब करने वालों को सज़ाए मौत देते हैं? हमारा गुनाह इतना संगीन था कि हम सज़ाए मौत के मुस्तहिक ठहरे। हमें ये समझना चाहिए कि हमने आसमान में बड़े गुनाह किए थे और इस ज़मीन पर अपने गुनाहों की सज़ा के तौर पर गुनहगारों की ज़िंदगी गुजारने के लिए जिलावतन कर दिए गए थे। अगर हम अपनी सूरत हाल का मुवाजना फौजदारी कानून के निज़ाम से करें तो हमें मौत की सज़ा मिली है। हमने सज़ाए मौत के लायक गुनाह किए थे। कई बार हम इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं कि हम सज़ाए मौत के मुस्तहक गुनहगार हैं। ताहम हम इस हकीकत को न समझते हुए अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारते हैं। इसीलिए हम मगरूर और मुतकब्बर बन गए हैं और खुदा के सामने खुद पर फ़ख्र करने लगते हैं। तमाम बनी नूह इंसान इस किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप सब, हमारे यहाँ आने की वजह अपने गुनाह से तौबा करना है। खुदा ने हमें मोहलत दी है। ये इस ज़मीन पर हमारी ज़िंदगी के 70 या 80 साल हैं। खुदा ने हमें तौबा का वक्त बख्शा है, बल्कि इसके बरअक्स लोग बेशरा काम करते हैं। इसीलिए खुदा आखिर में उनकी हतमी अदालत करेंगे। हम उस दिन को अदालत का दिन कहते हैं। हम आयत 23 दोबारा देखते हैं। ये लिखा है कि क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की ज़िंदगी है। हम गुनहगार थे और मौत की सज़ा के मुस्तहक थे, ताहम खुदा ने हमारे तमाम गुनाह माफ़ कर दिए थे। हमें खुदा का फ़ज़ल हासिल करना चाहिए जो हमें हमेशा की ज़िंदगी को ले जाते हैं। हमें उस फ़ज़ल को हासिल करने की गरज से हमें खुदा के वादों में शरीक होना चाहिए। मौत की सज़ा उन लोगों को दी जाती है जिन्होंने संगीन गुनाह किए हों और जो माशरे में मज़ीद नहीं रह सकते। क्या ऐसा नहीं है? हम सब आसमानी फरिश्ते हैं जिन्होंने आसमान में संगीन और नाकाबिल मुआफ़ी गुनाह किए थे और आसमान से इस ज़मीन पर निकाल दिए गए थे। ताहम खुदा ने हमें रद्द नहीं किया था। उन्होंने हमें अपने बेटे और बेटियां गर्दाना और हमें अपने गुनाहों से तौबा करने और नजात हासिल करने का मौका बख्शा। हमें हरगिज़ इस कीमती मौका को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।
हमें खुदा की मर्जी के मुताबिक तौबा की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तमाम बनी नूह इंसान के लिए आसमान की बादशाही में वापस जाने का यही वाहिद रास्ता है। आए इफ्सियों बाब 1 आयत 7 की तरफ जाते हैं। हमको उसमें उसके खून के वसीला से मुखलिसी यानी कसूरों की मुआफ़ी उसके उस फजल की दौलत के मुआफ़िक हासिल है। आसमान की बादशाही में वापस जाने का सिर्फ एक ही तरीका है। ये हमारे गुनाहों की मुआफ़ी के लिए है। किताब मुक़द्दस इसे गुनाहों की मुआफ़ी के तौर पर बयान करती है। कोई भी गुनाहों की मुआफ़ी हासिल किए बग़ैर आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। ख्वाह वो कितने ही ज़हीन क्यों ना हों, ख्वाह वो कितने ही अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ क्यों ना रखते हों, ख्वाह कितने ही मशहूर क्यों ना हों, ख्वाह कितने ही अमीर क्यों ना हों, कोई भी ज़मीनी चीज़ों के साथ आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। हम सिर्फ तब आसमान पर वापस जा सकते हैं जब हम उन गुनाहों की मुआफ़ी हासिल करें जो हमने आसमान पर किए थे। हम इफ्सियों बाब 1 आयत 7 से गुनाहों की मुआफ़ी हासिल करने का तरीका देख सकते हैं। हमको उसमें उसके किसके वसीला, उसके खून यानी यसू के खून के वसीला मुखलसी यानी कसूरों की मुआफ़ी उसके उस फजल की दौलत के मुआफ़िक हासिल है। हम सिर्फ यसू के खून के वसीला गुनाहों की मुआफ़ी हासिल कर सकते हैं। ये वाहिद तरीका है। इस वादा के सिवा कोई राह नहीं है। आए मालूम करते हैं कि यीशु किस रस्म के वसीला हमें अपना खून लेने की इजाज़त देते हैं ताकि हम गुनाहों की मुआफ़ी हासिल कर सकें। आए मत्ती बाब 26 आयत 17 की तरफ जाते हैं। और ईदी फ़तीर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तो कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, शहर में फ़िलां शख्स के पास जाकर उससे कहना, उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नज़दीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ ईदी फसह करूँगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि यीशु फसह मनाना चाहते थे। जारी रखते हैं। और जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही किया और फसह तैयार किया। हम कीमती वादा को जान सकते हैं जिसके ज़रिए हम मसीह का खून हासिल कर सकते हैं। ये फसह है। आयत 26 से जारी रखते हैं। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। हम प्याला नहीं पी सकते। यीशु ने प्याला देते वक्त किया कहा था जिसमें फसह की मैं थी, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतीरों के लिए गुनाहों की मुआफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। यीशु ने कहा, ये मेरा अहद का खून है, और फिर हमें फसह की मैं दी। खुदा ने वादा किया था कि जब हम फसह की मुक़द्दस रस्म को मनाते हैं जो हमें यसू का गोश्त और खून लेने की इजाज़त देती है, तो वो उन तमाम गुनाहों को मुआफ़ कर देंगे जो सज़ाए मौत के मुस्तहक़ हैं। हमें इस पर यकीन रखना चाहिए। ताहम आजकल ऐसी कोई कलीसियाएं नहीं हैं जो फसह मनाती हैं, हालांकि किताब मुक़द्दस वाज़े तौर पर इसकी गवाही देती है। क्या हमारे पास कोई मुख्तलिफ किताब मुक़द्दस है? हमारे पास एक ही किताब मुक़द्दस है। चाहे अंग्रेज़ी वर्जन हो या असल मतन, इन सब का सियाक़ व सिबाक़ एक ही है। अगरचे हमारे पास एक ही किताब मुक़द्दस है, पर आजकल लोग फसह नहीं मनाते। क्या ये हैरान कुन नहीं है? यीशु इस ज़मीन पर आए और अपने शागिर्दों के साथ आखिरी इशा की। वो दिन ईद फसह था। सब लोग लियोनार्डो डाउंची की मशहूर मसूरी को जानते हैं। इसका नाम द लास्ट सपर है। वो तस्वीर किताब मुक़द्दस में फसह का मंजर दिखाती है। लफ्ज़ी तौर पर वो दिन इस ज़मीन पर यीशु के लिए आखिरी इशा का था। उन्होंने फसह मनाई और हमसे वादा किया कि अगर तुम ये खाओ और पियो तो मैं तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शूंगा। ये रोटी और मैं वादा है कि तुम्हें गुनाहों की मुआफ़ी दी जाती है ताकि तुम आसमान की बादशाही में वापस जा सको।
यसू फसा के वसीला हमें बरकत देने को यकीनी बनाना चाहते थे। उस वक्त यसू और उनके रसूलों ने फसा मनाई थी। फसा 325 बाद अज़ मसीह तक मनाई जाती रही थी। ताहम फसा की ये कीमती सच्चाई कब गायब हो गई थी? निकाया में एक कौंसिल थी जहां रोमी शहंशाह कुस्तंतीन हुकूमत करता था। कलीसिया के तमाम रहनुमा वहां जमा हुए और फसा को मनसूख करने के तरीका पर बहस की। उन्होंने 155 बाद अज़ मसीह, 157 और 325 में इसकी कोशिश की थी। उन्होंने 3 बार कोशिश की और 325 बाद अज़ मसीह में फसा को मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दिया। ये हकीकत कि फसा मनसूख कर दी गई थी का मतलब है कि खुदा का वादा गायब हो गया था। किसी को भी गुनाहों की मुआफ़ी हासिल करने का हक नहीं हो सकता। इसकी वजह यह है कि किसी के पास खुदा का वादा नहीं है। इसीलिए खुदा को दूसरी बार जिस्म में आना है ताकि हम दोबारा गुनाहों की मुआफ़ी हासिल कर सकें। क्योंकि कोई भी सिखा या राह नहीं खोल सकता, इसलिए खुदा को आकर इस मसला को हल करना है। हम इब्रानियों बाब 9 देखते हैं। इब्रानियों बाब 9 आयत 28। उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के नजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। मसीह के दूसरी बार आने की एक वजह है। ये लिखा है कि वो उन लोगों की नजात के लिए दूसरी बार जाहिर होंगे जो उनके मुंतजर हैं। इसका मतलब है कि खुदा आएंगे और 325 बाद अज़ मसीह में मनसूख कर दी गई फसा की सच्चाई को बहाल करेंगे। खुदा के सिवा कोई भी फसा को बहाल नहीं कर सकता। तो फिर हम खुदा के ज़मीन पर आने और हमें नए अहद की फसा की सच्चाई सिखाने के बारे में नबूवत मालूम करते हैं। आए मेकाह बाब 4 आयत 1 की तरफ जाते हैं। आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और सब टीलों से बुलंद होगा और उम्मतें वहां पहुंचेंगी। बहुत सी कौमें आएंगी और कहेंगी आओ खुदावंद के पहाड़ पर चढ़ें और याकूब के खुदा के घर में दाखिल हों। वो यानी खुदा क्या करेंगे? खुदा अपनी राहें हमको बताएगा। मसीह आन सांग होंग इस ज़मीन पर आए और तमाम कौमों के लिए राह खोली कि वो नए अहद की फसा मनाएं जो 325 बाद अज़ मसीह में मनसूख कर दी गई थी। और हम उसके रास्तों पर चलेंगे क्योंकि शरीयत सिय्योन से और खुदावंद का कलाम यरूशलेम से सादिर होगा। यसायाह बाब 25 में भी यही नबूवत दर्ज है। हम यसायाह बाब 25 आयत 6 की तरफ जाते हैं। और रब्बुल अलाफवाज इस पहाड़ पर सब कौमों के लिए फरबा चीज़ों से एक ज़ियाफ़त तैयार करेगा, बल्कि एक ज़ियाफ़त तलछट पर से निथरी हुई में से। हाँ, फरबा चीज़ों से जौपुर मग्ज़ हूँ और मैं से जो तलछट पर से खूब निथरी हुई हो। ये लिखा है कि पुरानी में आए वजह मालूम करते हैं कि क्यों खुदा पुरानी में से ज़ियाफ़त तैयार करते हैं। आयत 7 देखते हैं। वो इस पहाड़ पर उस पर्दा को जो तमाम लोगों पर पड़ा है और उस निकाब को जो सब कौमों पर लटक रहा है दूर कर देगा। वो क्या नाबूद करेगा? मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेगा। यहाँ ये मैं को जाहिर करती है जो मौत को हमेशा के लिए नाबूद कर देती है। किताब मुक़द्दस की 66 किताबों में वाहिद में जो मौत को हमेशा के लिए नाबूद करती है फसा की मैं है जो कि यसू का खून है। तो फिर कैसे फसा की मैं मौत को हमेशा के लिए नाबूद कर देती है? यीशु ने वाज़े तौर पर यूहन्ना बाब 6 आयत 54 में इसका जिक्र किया था। जो मेरा गोशत खाता और मेरा खून पीता है उसकी क्या है? हमेशा की जिंदगी उसकी है।
ہم गुनहगार हमेशा की ज़िंदगी नहीं पा सकते। हम हमेशा की ज़िंदगी सिर्फ तब पा सकते हैं जब हमारे गुनाह मुकम्मल तौर पर मुआफ़ किए जाएं। जब यीशु ने हमें फसा की रोटी और मैं दी तो उन्होंने कहा, ये मेरा गोश्त है, ये मेरा खून है, खाओ पियो। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा कराऊंगा। उन्होंने ये वादा किया था। आप सब, हम आसमान पर फरिश्ते थे, ताहम हम आसमान से इस ज़मीन पर फेंक दिए गए थे क्योंकि हमने गुनाह किया था। हमारा गुनाह बहुत संगीन था जो मौत की सज़ा के लायक था। ये नाकाबिल मुआफ़ी गुनाह था। हत्ता कि इस ज़मीन पर क्या कोई सज़ा मौत की सज़ा से ज़्यादा संगीन है? मौत की सज़ा उन लोगों को दी जाती है जिन्होंने ऐसे गुनाह किए जो मुआफ़ नहीं किए जा सकते। चूँकि हम इस ज़मीन पर अपनी शनाख्त को समझे बगैर रहते हैं, तो हम खुदा के सामने मुतकब्बर हो जाते हैं। नए अहद की फ़सा जो मौत को हमेशा के लिए नाबूद कर देती है, ज़िंदगी की सच्चाई की मैं। खुदा ने कहा कि वो इनके साथ एक ज़ियाफ़त तैयार करेंगे और ये कि ऐसा दिन यकीनन आएगा। हम बाब 25 आयत 8 से जारी रखते हैं। वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेगा और खुदावंद खुदा सबके चेहरों से आंसू पूंछे डालेगा और अपने लोगों की रुसवाई तमाम सरजमीन पर से मिटा देगा, क्योंकि खुदावंद ने ये फरमाया है। और उस वक्त यूं कहा जाएगा, लो ये कौन? ये हमारा खुदा है। किताब मुक़द्दस कहती है कि मसीह दूसरी बार हमारी निजात के लिए ज़ाहिर होंगे। दूसरी बार कहने से इसका मतलब है कि वो जिस्मानी सूरत में आएंगे, न कि रूहानी सूरत में। इसकी वजह यह है कि मसीह हर वक्त रूह में हमारे साथ हैं। ये लिखा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि खुदा पहली या दूसरी बार तब आते हैं जब वो रूहानी हालत में होते हैं। खुदा रूहानी हालत में थे और पहली बार मुजस्सम हुए जब वो बीत लहम में पैदा हुए थे। और इब्रानियों बाब 9 में ये लिखा है कि वो हमारी नजात के लिए एक बार फिर मुजस्सम होंगे। ये लिखा है कि वो दूसरी बार नजात के लिए उनको दिखाई देंगे जो उनके मुंतज़र होंगे। जब खुदा दूसरी बार आते हैं तो क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं? आज बहुत से लोग मसीह की दूसरी आमद होने का दावा कर रहे हैं। हम दूसरी बार आने वाले सच्चे मसीह को कैसे पहचान सकते हैं? हम किताब मुक़द्दस से जवाब जान सकते हैं। हमें किताब मुक़द्दस की नबूवतों का मुताला करने की ज़रूरत है। जब आप किताब मुक़द्दस की नबूवतों का मुताला करें तो 325 बाद अज़ मसीह से फसा ख़त्म कर दी गई थी। ये 1600 साल गुजरने के बाद बहाल हुई है। ये वाकई पुरानी में थी। बस उस दिन लोग क्या कहेंगे? और उस वक्त यूं कहा जाएगा, लो ये हमारा खुदा है। हम उसकी राह तकते थे और वही हमको बचाएगा। ये खुदावंद है। हम उसके इंतज़ार में थे। हम उसकी नजात से खुश व खुर्रम होंगे। आप सब, खुदा ने हमारे लिए गुनाहों की मुआफ़ी हासिल करने के लिए फसा कायम की थी। आज हमें किताब मुक़द्दस की इन नबूतों पर अमल करते हुए आसमान की बादशाही में दाखिल होना चाहिए। क्या हम आसमान की बादशाही में अपनी काबिलियत, हुकमत, इख्तियार, माल या इल्म से दाखिल हो सकते हैं? कोई भी दाखिल नहीं हो सकता। सिर्फ खुदा हमारे गुनाह मुआफ़ कर सकते हैं। आज आए हम मसीह आन सांग होंग को शुक्र और जलाल दें, जिन्होंने नए अहद की फ़सा की सच्चाई के वसीला हमें गुनाहों की मुआफ़ी बख्शी है। हम अपनी आसमानी माँ को भी अब्दी इज़्ज़त दें। अब भी हमारे गिर्द बहुत से लोग हैं जो नए अहद की फ़सा की सच्चाई को नहीं जानते। आए हम फ़सा की खबर पहुँचाएँ और उन्हें ये कहते हुए किताब मुक़द्दस सिखाएँ कि आए हम उस सच्चाई से नजात हासिल करें जो खुदा को पसंद है और इकट्ठे आसमान पर जाएं।
میں آج کا واز ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔